So when exhaust valve is in operation, okay, so this is your exhaust valve. Okay, when it is in operation, and this is your C. Okay, this is C. This is exhaust valve. When it is in operation, okay, so there will be some amount of unburnt carbon also. Do you agree? बोलो एग्जॉस्ट गैस से जो जा रहा है, there will be some amount of carbon. Yes, sir. Unburnt Yes, sir. unburnt carbon will be there. Okay. Now, if your injectors are faulty, if your anything that will lead to incomplete combustion will cause unburnt carbon to go out from exhaust valve, right? Incomplete combustion could be because of your scavenger, it could be because of your injectors, because of your fuel pump, okay, and because of the sealing of your exhaust valve. It could be anything, okay. So this unburnt carbon, what it does is it gets sticks into the surface, स्टिक कर जाता है यहाँ पे, राइट? आपने कभी भी इंजन खोला होगा, देखा होगा, काफी कार्बन रहता है वहां पे, एग्रीड? बोलो. Yes, sir. Okay, this unburned carbon sticks here. Yes, Okay, sir. and this unburned carbon will eventually form ash. It will eventually become ash. Ash. Now, ash melting point is about 650 degrees Celsius. Okay, so in normal circumstances, I do not have to worry because my exhaust gas will be going around 350 to 400 degrees Celsius and it will be going out. So this ash will not create a problem at this moment. Okay, but if in fuel sodium to vanadium ratio becomes 1:3, okay, in fuel you have some sodium content, you have some vanadium content in it. Okay, fuel की एनालिसिस रिपोर्ट में दिया रहता है ये सब, कितना कितना क्या है. अगर this proportional becomes in the ratio of 1:3, in that case hot corrosion is going to take place. इतना समझ आया सबको? बोलो, everyone understood? Yes, sir. Yeah, okay. So what happens actually is, okay, ऊपर ले देता हूँ. Okay, I have no. Yes. Okay. Hot corrosion is going to take place. Now, what happens is sometimes they can even ask you what is stiction temperature. ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछेगा तो he will ask you what is stiction temperature. So normally ash का जो melting point था, how much it was? 650. 650. Suppose this is 650 degrees Celsius. Okay. And if the sodium to vanadium ratio reaches 1:3, the melting point starts to drop. And this point is 1:3 point of your sodium to vanadium content. Okay. So what happens actually is if your ratio becomes 1:3 of sodium and vanadium in fuel, then the melting point of ash drops. Is it एक clear? लाइन समझ नहीं आया सर, कैन यू रिपीट वन सर? Yeah. Okay. कहाँ तक Yes. समझ आया था? सर ये समझ आया? रेशियो 1/3 होगा तो हॉट क्लोजन टेक प्लेस होगा, और ये ग्राफ नहीं सर समझ आया थोड़ा सा. Okay. वो वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ अभी. So what happens is
when your see when the ratio is not 1:3, normally your melting point of ash is 650 degrees Celsius. It is not going to cause any problem. But as the ratio increases of sodium and vanadium content in your fuel, if this increases, then the melting point of ash, this is melting point, starts to drop. Can you see? And exactly ये at one इनवर्सली ratio, प्रोपोर्शन है ये दोनों, राइट? yes, exactly. No, no, I cannot say that because after this it is increasing again, right? Okay. So once the ratio of sodium and vanadium content in fuel reaches 1:3, in that particular instance, your melting point of ash is going to drop. Is this clear now? बोलो. यस सर। इसका मतलब टेम्परेचर ड्रास्टिकली कम होने की वजह से ये फिनोमेना हो रहा है। नहीं नहीं, टेम्परेचर की वजह से नहीं. इंस्टेड ऑफ इट बर्निंग इज इट बिकॉज ऑफ 650 द रेशियो ऑफ सोडियम टू वेनेडियम. फॉलिंग इट। ठीक है, इसके रेशियो के बेसिस पे इफ फ्यूल में जो यस। कंटेंट्स रहते हैं आपके, इफ द कंटेंट सोडियम एंड हाँ। वेनेडियम कंटेंट्स आर देयर स्पेसिफिकली, ओके, सो इफ देयर रेशियो रीचेज 1:3, ओके, इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, एक फ्यूल में मान लो ये फ्यूल है मेरा, ठीक है, दिस इज आई एम गोइंग टू यूज इन माई इंजन, ओके, इफ in this fuel I will be having some sodium content, I will be having some vanadium content also, and lot of other things also. If in दोनों के ratio in this fuel becomes in 1:3, in that particular instance the melting point, जो यहाँ पे अब कार्बन जमा होगा, ये कार्बन का melting point right now it is 650. But if 650। the यस। fuel if in fuel the ratio reaches 1:3, then the melting point of this ash is going to drop down to 350. That is what is. यस सर। यस। And this point where my ratio is 1:3, it is known as stiction temperature, or you can say stiction temperature is the temperature at which the fuel the sodium and vanadium content in the fuel reaches 1:3 and melting point of ash drops. That is known as stiction temperature. ठीक है, कभी कभार वो सीधा आपसे पूछेगा स्टिक्शन टेम्परेचर क्या होता है, देन यू शुड से, लिख देता हूँ टेम्परेचर बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ इन फ्यूल द रेशो ऑफ sodium to vanadium reaches, yeah, you can hear me guys, right? Yes, sir. I got disconnected. Okay. So what I was saying is, if in fuel the ratio of sodium and vanadium reaches 1:3, or you can write 1:3, then the melting point of ash drops down. Okay. So the lowest point at which this happen, or you can say when the ratio is 1:3, that point, that temperature corresponding to that ratio, the temperature is known as stiction temperature. So the temperature corresponding to 1:3 of sodium to vanadium is known as stiction temperature. Is it clear? यस सर। This particular temperature will be known as stiction temperature. यहाँ पे जहाँ पे ये हो रहा है उस point को we consider it. Is it clear? At this point, at point A. Clear है? Is it clear this much? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Now the melting point of ash has dropped to 350, right? So what will Yes, sir. happen to this ash? जो यहाँ पे It will start melting. it will starts to melt. burn। Okay, यस। it will starts to melt, and when it is going to melt, so if this is your valve, okay, and suppose यहाँ पे these are your ash,
And if it is going to melt, what it will do is it will create holes, or you can say the pitting on your exhaust valve. ऐसे holes बन जाएंगे because it will take some of the metal also with it. हाँ सर। ठीक है, so it will take some of the metal, sorry ऊपर बना दिया मैंने इसको, नीचे बनेगा ये ऐसे, it will take some of the metal along with it, हाँ? So this is known as hot corrosion. In Is it case clear? of exhaust valve, we can tell about these type of hot corrosion. Otherwise, it is different for other. Yes. ठीक है, particularly they ask hot corrosion in terms of exhaust valve. ठीक है, is it clear? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर ये फिटिंग का कुछ फोटो है सर आपके पास वाल्व का? See, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। Sir, why is the metal melting at such low temperatures, sir? बोला ना अभी, उसका फ्यूल में कंटेंट चेंज हो गया। ठीक है, 1:3 रेशियो के बस। यस, so it will become very corrosive। दिख रहा है? हाँ यस सर। ठीक है, so this is hot corrosion, you can see how the walls will become। ठीक है, so this will be the condition, you can see the condition here also। ठीक है, is it clear? It is not just related to main engine ना, auxiliary engine में भी same चीज है। ठीक है, is it clear? यस। Okay, now first of all, whenever the supplier is giving you the fuel, okay, supplier जब fuel दे रहा है, he will make sure that the sodium to vanadium ratio is never 1:3। ठीक है, contents में। ठीक है, but you have to cross check, the chief engineer will cross check it in your fuel analysis report also, they will also tell you that the ratio is not 1:3, that means you are good to use this fuel, but still if we are using this much precautions, then how hot corrosion are still happening on our engines? It still happens। why it happens is because वी हैव वेनेडियम, तो वह उतना ही रहेगा जितना फ्यूल में है नॉर्मली जो सप्लायर ने दिया, बट व्हाट अबाउट सोडियम? सोडियम कैन कम फ्रॉम सी वाटर, हाँ सर, सी वाटर ड्रेन वी नहीं हैव करेगा तो NaCl। ज्यादा हो जाएगा। so ऐसा। if from somehow sea water content or vapors enters into your bunker tank, okay, then the sodium content will start to rise, and there might be possibility that at one given period of time the ratio will become 1:3। do you agree? बोलो। बट सर ये सी वाटर के ये आने के चांसेस तो बहुत कम है ना, मतलब। हाँ, बता पॉसिबल रहा है हूँ कैसे, बताता हूँ कैसे आ सकता है। ठीक है, नाउ यू सी, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बंकर टैंक है। ओके, यू हैव समथिंग नोन एज वेंट हियर, राइट, एंड हियर यू हैव व्हाट डू यू हैव, एक ट्रे रहता है, क्या बोलते हैं उसको? साउंड ड्रिप ट्रे, ड्रिप ड्रिप ड्रिप। ट्रे, ड्रिप ट्रे। ड्रिप ट्रे है ना। नाउ सपोज आपने ये प्लग एट सी बंद करके रखा है, ओके, ड्रेन प्लग रहता है नीचे। हाँ सर। ठीक है, every drip tray will have its drain plug, so suppose it should be open condition during sailing, suppose you have kept it closed, okay, and during heavy rolling there are chances that sea water might come here। बोलो, ड्रिप ट्रे में आ सकता है यस। पानी। ठीक है, now if sea water has come, now sea water is highly corrosive, okay, and suppose you do not drain it, okay, now what happens is in this region some sea water has been filled। now sea water is already corrosive in nature, धीरे धीरे it will eat away your metal and it will enter into your tank। this is one of the reason। second is inside it you have a non-return valve,
right? Flame screen and all those things, right? फ्लेम ट्रैप के Yes. अंदर, ओके। सो दे आर, आप देखोगे बंकर टैंक का हमेशा जो वेंट रहेगा उसमें आगे ऐसे फ्लैप लगा रहता है, राइट? ठीक है। Yes. Yes, sir. बंकर टैंक वेंट फॉर, ये वाला आपका ब्लास्ट, सॉरी, कौन से पंप्स होते हैं वो, वाटर वाले पंप्स जो भी हैं, ब्लास्ट पंप्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप वेंट देख सकते, ये देख सकते हैं, ये बंद है ना, ऊपर से देखो, ये बंद है, प्लेट यहाँ से Yes, नीचे sir. से ऊपर, नीचे से ओपन रहेगा, ठीक है। Yes. इट विल बी ओनली ओपन फ्रॉम, बट ब्लास्ट जो टैंक्स होते हैं आपके, उसका ऊपर से भी और नीचे से दोनों तरफ से खुला रहता है, लाइक दिस वन, हाँ, ऐसे, ठीक है। सो दिस विल प्रिवेंट सी वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो इनटू माय वेंट, एग्रीड? पुराने टाइम पे क्या रहता था, ओके, दिस वाज नॉट देयर, ओपन था, सो वाटर यूज्ड टू एंटर फ्रॉम हेयर आल्सो, ठीक है। देयर वर चांसेस ड्यूरिंग हैवी रोलिंग एंड पिचिंग द वाटर माइट एंटर फ्रॉम हेयर, ठीक है। बट नाउ डेज, बिकॉज वी हैव दिस प्रोटेक्शन, ठीक है, दिस इज अ पीएससी डिफेक्ट, अगर ये ऊपर से खुला है तो बंकर टैंक का, कोई भी ऑयल टैंक का, सो ये इट शुड बी क्लोज्ड। सो this is one of the reason why your what do you say, NaCl can increase, ठीक है। Second thing is, during your dry docks and all, lot of bunker tanks are open, right? Lot of bunker tanks are open during that condition, ठीक है। So vapors के through भी it will go and condense down below, and then there could be chances that your sodium content can increase slightly, okay, slowly and slowly, clear? सर ड्राई डॉक में क्या होगा सर? ड्राई डॉक में आपके बंकर टैंक्स के ढक्कन खुले रहते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ओके। नॉर्मली कोई ना कोई मेंटेनेंस चल रहा है, कुछ चल रहा है ना, सो काफी टाइम खुला रहता है, तो उस टाइम पे भी योर वेपर्स, विद वेपर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, योर सोडियम कंटेंट कैन इंक्रीज, बट ये थोड़ा अनलाइकली है, बट दिस इज स्टिल important point to say if he asks. Is it clear? यस सर। ठीक है। And third is obviously if the supplier has given you without checking that the sodium vanadium content is 1:3, and chief engineer also didn't see and you use that, then obviously the problem will come. Second thing, how else you can avoid, this is the last resort ने, ये सब तो हम नॉर्मली करते ही हैं। उससे पहले आई वांट, मेन प्रॉब्लम क्या था, शुरुआत कहाँ से हो रही है? इनकम्प्लीट कंबशन से, राइट? If incomplete combustion will not be there, there will be no unburnt carbon. If there will be no unburnt carbon, no ash will be there here, and everything will be okay, isn't it? Yes. ठीक है। So you have to provide, first of all, you have to, you know, try to, prevent this condition to happen. So you have to check your fuel injectors, fuel pump, everything should be in very good condition. Your exhaust valves, ठीक है। Yeah, so these conditions should be good. Okay, your turbocharger, air cooler, everything should be in good condition. Then this condition will not occur. Okay, your timing should be proper. Okay, all those things. Now suppose if hot corrosion happens, okay, and these grooves will become. So आपको क्या लगता है, यहाँ पे सीलिंग प्रॉपर होगा मेरा? Is in this नहीं region, होगा। ceiling will be dropped. If ceiling will not be proper, my PCOM will reduce, compression pressure, Yes. power will be reduced, right? अगर कंप्रेशन प्रेशर ही कम है तो पीक प्रेशर भी कम होगा, isn't it? Yes. पीक प्रेशर कम है तो पावर कम बनेगी, ठीक है। दैट मीन्स आई विल बी यूजिंग मोर फ्यूल, देन माई SFOC विल इंक्रीज। इंक्रीज, ठीक है। So these are your problems that are going to come if your hot corrosion happens.
Is it clear what is hot corrosion? सर ये टैंक के ड्रेन करने पे भी इफेक्ट होगा, मतलब अपन टैंक को ड्रेन नहीं कर रहे हैं तो उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? टैंक को ड्रेन नहीं कर मतलब रहे हैं? यस सर, यस सर। हाँ ऑब्वियसली हाँ ना, सर, वहां से पानी। नॉर्मली हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। वही सर, नॉर्मली आफ्टर वी आर गेटिंग रिपोर्ट तो आते हैं सर लैब से। उसमें हाँ लैब लिखता से था। रिपोर्ट आती है, आप वहां से हाँ चेक करोगे। ठीक है, हाँ, तो रेगुलरली। नॉर्मली नहीं होना चाहिए, बट हाँ सर। यहाँ से फिर भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से पानी आ सकता है सी वाटर का। वी आर इन सी वाटर 24/7, राइट? ओके सर। सम अमाउंट ऑफ सी वाटर माइट गो। ठीक है, ओके ओके सर। एंड देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आपने इनकम्प्लीट कंबशन इज गोइंग ऑन for a considered period of time, then it will stick. It will bring your uh, melting point of ash down. Your melting will starts to happen slowly and steadily, and it will create your sealing problem. Exhaust valve will not seal properly, and it is going to cause you power drop and your fuel consumption to increase. Is it clear? यस सर। यस सर। सर वो मैं पूछ रहा था कि जैसे अपन ने 1-2 महीने ड्रेन ही नहीं किया टैंक, तो मतलब थोड़ा उससे भी होने लगेगा ना सर? 1-2 मिनट ड्रेन ही नहीं किया? यस सर। वो मेरे क्या में हो गया ड्रेन? था सर ऐसा। टैंक ड्रेन नहीं करते थे फिर, लेकिन फिर बाद में करने लगे थे सर। अच्छा, आप बोल रहे हो बंकर टैंक को यस सर। सर्विस सेटलिंग को ड्रेन करने की बात कर रहे यस सर, सर्विस सेटलिंग का सर। यस सर। हो? हाँ चांसेस है ना, क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली आपके इंजन में जाना चाहिए ऑयल, तभी प्रॉब्लम होगा, है ना? यस सर, यस सर। So normally उसको we can separate by heating it also. If we are getting this much quantity amount of sodium in fuel, so by heating we can separate it in the bunker फिर भी tanks. फ्यूल में ही रह जाएगा, NaCl will solidify, it will still remain in fuel, right? ओके सर। तो नॉर्मल So हीट करके उसको ड्रेन करके भी कांट कम करने का ड्रेन करके कम निकाल नहीं कर सकते हो, सकते। यस। बाय हाँ सर। ड्रेनिंग मे बी स्लाइटली यू कैन रिड्यूस द कंटेंट। ठीक है, बट द मेन प्रॉब्लम यस इज नॉट दैट वन। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है आपका इनकम्प्लीट कंबशन। स्टार्टिंग ही वहीं से हो रही है, राइट? सर। ठीक है, ये 1:3 होना इज नॉट वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, बट इनकम्प्लीट कंबशन इज वेरी कॉमन हैपन्स। ठीक है, हम लोग ध्यान नहीं ओके सर। देते इंजेक्टर्स में, वी आर नॉट हाँ सर। फोकसिंग मच मोर, वी कीप डिलेइंग द वर्क्स। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स विल हैपन। ओके, एंड ये सब आपको कहाँ पता चलेगा, कब कैसे पता चलेगा ये सब प्रॉब्लम आ रहा है? बाय योर परफॉर्मेंस। इंडिकेटर कार्ड्स, है ना? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस लोगे सर आपको दिखेगा कि हाँ। इस हाँ बोलो। कंडीशन में नॉर्मली टेम्परेचर भी कम होता है ना सर, एग्जॉस्ट टेम्परेचर फ्रॉम पर्टिकुलर यूनिट। पी कॉम कम हो गया, ऑब्वियसली पीक प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप्स हो जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट दिस विल बी द इंडिकेशन नो सर फॉर अस, एग्जॉस्ट टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब। टेम्परेचर कम होने के और बहुत से रीजन हो सकते हैं, है ना? आई कैन नॉट ओके स्पेसिफिकली सर। टेल, बट पी कॉम ओके सर। रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स लीक हो रहा है ना? लीक ओके कहाँ से सर। हो सकता है? आइदर फ्रॉम पिस्टन रिंग्स और फ्रॉम एग्जॉस्ट वॉल्व। यस सर। ठीक है, अगर पीक प्रेशर बाकी यूनिट्स का पी कॉम ठीक है, 1 यूनिट का कम है, व्हाट डज इट मीन? एयर कूलर इज अ सो कॉमन लीकिंग। थिंग, turbocharger is a common thing. The only thing that separates compression pressure is your piston rings cylinder। आप एक कंबशन चैम्बर को सोचो, क्या है उसके अंदर? सिलेंडर हेड यस है, सर। यस सर। पिस्टन रिंग्स हैं यहाँ पे पिस्टन के साथ, है ना? सो पिस्टन रिंग्स माइट बी लीकिंग और एग्जॉस्ट वॉल्व माइट बी लीकिंग। डू यू एग्री? यस सर। ओके सर। ओके, पिस्टन रिंग्स को आप स्कैबन इंस्पेक्शन से वेरीफाई कर सकते हो कि अगर वो लीक कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है ना? स्कैबन यस इंस्पेक्शन में सर। जो आप चेक करते हो, यू आर चेकिंग ऑल दिस थिंग्स, ब्लो पास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? ओके, कैन वी गो अहेड नाउ? आगे बढ़े? यस सर। यस। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट कोलिजन। ओके, नेक्स्ट इज, let us discuss about your clearances. Okay, see, I'll show you some journal. One more thing, how will you come to know your uh, exhaust wall is rotating? ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है?
How we are figuring it out in your auxiliary engine? By hammering, sir, मतलब हाँ, उसको वो मार्क करके हैमर करते हो है ना? हैमर कर, यस सर. इसमें yesterday if you remember I showed you in your air piston there was a groove, right? यस सर. ठीक है. This groove is not like ऐसे नहीं है, एक सिंपल ग्रूव नहीं है, इट इज इंक्लाइन थोड़ा सा, राइट? दिखाया था. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो दैट मीन्स देयर इज अ इंडिकेटर. एग्जॉस्ट वॉल में टॉप में इंडिकेटर रहता है. एक इंडिकेटर में एक पिन रहती है ऐसे, वो पिन आगे आपकी इस ग्रूव में बैठती है. सो इफ माई एग्जॉस्ट वॉल रोटेट्स this pin will sometime will reach here, right? Do you agree? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. है ना? एयर पिस्टन पे ये ग्रूव है. when air piston goes down, when your valve opens, जो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, when valve opens air piston also comes down, right? So if this, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ये क्या चीज है. यहाँ पे साइड पे होता है. किसी ने देखा, यूज किया है किसी ने ये चीज? ये देखो Yes, ऐसा sir. रहता है साइड में, है ये. Yes, sir. Last year I was doing these things. ठीक है, ये चीज इस साइड में होती है. नॉर्मली ऐसे ये जो पिन है ना, ऐसे नीचे तक जाती है. ये आपके नीचे जाके कहाँ पे लगती है? इट इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड. ठीक है, जस्ट इट विल रेस्ट ऑन टॉप ऑफ व्हाट? Air piston. एयर पिस्टन. So if air piston moves down, this pin can also move down. What is that? What is it showing me? It is showing me if my exhaust valve is opening or closing, right? Exhaust valve open हो रहा है या close हो रहा है, I can check it from here in operation. Do you agree? बोलो, do you agree? नहीं समझ आ रहा, वीडियो में देखते हैं. Okay. ये देखो, ये दिखता है ना आपको? बोलो, ये देखा है सबने साइड में लगा हुआ? एमई इंजन में ये ऐसा नहीं रहता है. ठीक है, एमई इंजन में आपका अदर सिस्टम है, बट बाकी इंजन में हैव यू सीन दिस एग्जॉस्ट वॉल पे लगा हुआ टॉप पे? ठीक है. सो कैन यू सी सम मार्किंग्स हैव बीन मेड हियर? ठीक है. सो इफ योर वॉल्व इज ओपनिंग यू कैन सी हाउ इट विल ऑपरेटिंग लाइक दिस. Okay, sir. ठीक है. सो एग्जॉस्ट वॉल ओपनिंग क्लोजिंग विल बी checked by this. Okay, so this indicator will go and sit on your, you can see this is your, what is this? Air piston. ठीक है. Now if this moves only around 6 mm, 6 mm तक नीचे आता है और फिर ऊपर जाके वापस से ऐसे होता है. ठीक है, पहले थोड़ा सा नीचे आएगा देन पूरा नीचे जाएगा. दैट मीन्स एग्जॉस्ट वॉल इज रोटेटिंग. ठीक है, बिकॉज 6 mm नीचे क्यों आएगा? बिकॉज जो इंक्लाइन ग्रूव है उसका डेप्थ 6 mm है मैक्सिमम. ठीक है. सो यहाँ पे था इनिशियली, सपोज इफ इट रोटेट्स, एयर पिस्टन रोटेट्स, so this pin will come somewhere here, right? Do you agree or not? सर एक बार दोबारा बता दीजिए. होल्ड ऑन, पहले इसको देखो. ये ग्रूव दिख रहा है ना यहाँ पे? यू कैन सी दिस ग्रूव राइट ऑन द एयर पिस्टन. यस. On this your pin will be coming. Okay, pin I'll show you, maybe they'll show here. यहाँ पे देखो ये पिन आ रहा है ऊपर से, दिख रहा है? Yes, sir. So it will be sitting on top of your air piston. ठीक है. And in this air piston you have this groove जहाँ पे ये पिन आके सिट कर रहा है ऐसे. So when this air piston, when your spindle rotates,
So air piston will also rotate. Do you agree? First class. If spindle rotates or spindle moves up and down, then air piston पे भी इफेक्ट पड़ेगा ना, वो भी घूमेगा. Do you Yes, agree? sir. ठीक है. So when air piston moves down, suppose initially it was here and it moves, so the spin will come somewhere here. It will lift up slightly. यस सर, यस सर. सो अप एंड So डाउन हो रहा है. हाँ, so स्लाइड. सो आप देखोगे पिन में वहां पे मार्किंग्स दे रखी हैं ऐसे, राइट. सो अगर वो स्लाइड ऊपर होके देन नीचे जा रहा है, दैट मीन्स इट वाज रोटेटिंग. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. या फिर इनिशियली से पोजीशन से स्लाइड नीचे है, सपोज यहाँ पे था, तो अभी वो क्या होगा, नीचे आएगा पहले जब रोटेट होगा. सपोज यहाँ, हाँ, ओके, ऊपर जाएगा. ठीक है ना. तो ये जो स्लाइड मूवमेंट है, ये मूवमेंट है 6 mm का. लेट मी जस्ट चेक ना, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्ट, इट वाज 6 mm. हाँ, यहाँ पे है. द इंजन मस्ट रन when the valve functions and spindle rotation can be checked. Lift the spindle and rotate it in 90 degrees. That means ये नॉर्मली ऐसे लॉक्ड रहता है, नॉर्मली वहां पे टच नहीं होता है. जब आपको चेक करना है, आप इसको उठाओ और 90 डिग्री घुमा के इस पोजीशन पे ले आओ, एंड देन इट विल मूव अप एंड डाउन. ठीक है, बिकॉज नाउ इट विल फॉल डाउन एंड इट विल डू इट्स थिंग. The indicator will now follow the movement of your valve spindle and the air piston. During the rotation, the valve spindle, the top position of the indicator will change about 6 mm. Yes, 6 mm. ठीक है, because the groove in the piston, air piston पे है ना. Is it clear? सर So नॉर्मल में कैसे रहेगा? नॉर्मल में भी करेगा अप एंड नॉर्मल में डाउन? ये लिफ्टेड रहता है. ठीक है, नॉर्मल में ये टच नहीं कर रहा होता है. नॉर्मली इट इज समवेयर हेयर, ऐसे लिफ्टेड रहता है ऊपर की तरफ. ओके ओके. ठीक है. आपको इसको उठा के 90 डिग्री घुमा के छोड़ना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन सी इन दिस थिंग ना, यहाँ पे आप बस वो देखो. टेस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं ना? हाँ, सिर्फ टेस्ट करने के लिए. अभी देखो यहाँ पे है ना, इसको उठा के हम यहाँ पे लॉक करके रखते हैं. दैट मीन्स नॉर्मली ये ऑपरेट नहीं हो रहा है. ठीक है. व्हेन आई वांट ओके. टू चेक, आई विल जस्ट लिफ्ट इट अप एंड मूव इट 90 डिग्री और इस ग्रुप में ले आऊंगा. देन इट विल स्टार्ट्स टू यू नो गेट इन कॉन्टैक्ट विद माई एयर पिस्टन. इज इट क्लियर? सर जब ये ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है, मतलब उसके बाद ही मतलब वो रोटेट कर रहा है क्या? मतलब एक बार से वो डायग्राम में बताइए ना सर. देखो, ये समझ आ गया, जब ये पूरा नीचे जा रहा है दैट मीन्स एग्जॉस्ट वॉल इज ओपनिंग, राइट. यस सर, वो नीचे जा रहा है, वो आ गया सर. When it is slightly going up and then going down, that means exhaust valve rotate हुआ और नीचे खुल गया valve. Clear? ओके. समझ आया? या सर अगर पूरा नीचे जा रहा है तो एग्जॉस्ट ये खुल रहा है, और अगर स्लाइटली जाके फिर नीचे जा रहा है तो रोटेट भी हो रहा है सर, मतलब वही ना? हाँ. हाँ. अभी एक चीज और याद रखो, दैट ये आपका एयर पिस्टन है, ग्रूव और सिर्फ यहीं पे है. ठीक है. सो कभी कभार आपको रोटेशन नहीं पता चलेगी. जब आपका पोजीशन यहाँ पे है पिन का या फिर यहाँ पे है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. जब आपका पिन रोटेट होते 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 यहाँ पे आ जाएगा, तब आपको पोजीशन पता चलेगी, राइट. ये बेसिकली चेक करने के लिए ना सर? This is just to check that your exhaust wall is opening and closing and it is rotating also. ये उसके लिए ओके है. सर. ओके ठीक सर. है. Check for wall spindle rotation. Is it clear? सर रोटेशन यस तो सर. ओपनिंग के टाइम ही होगा ना? हाँ. जब ओपन हो रहा है तभी होता है. ठीक है, वो डिस्कस किया था हमने, राइट. यस सर. ओके. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर. ठीक है. सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग. समटाइम्स दे आस्क दिस आल्सो, स्मॉल थिंग. हाँ, जस्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज है. ठीक है, लाइक दिस. इसमें ट्रबल शूटिंग क्या आ सकता है सर, जिससे रोटेट नहीं होगा? मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है? रोटेट तो हो गई, वो फिन्स है आपकी, फिन्स में जाके लगेगा जब एग्जॉस्ट गैस, तो इट विल रोटेट. रोटेट तो हो गई. सर व्हाट्स अबाउट एमी इंजन, उसमें ऐसा कुछ तो एमी नहीं इंजन में है क्या? सेंसर रहता है. ठीक है. आई विल कम ओके टू सर. एमी इंजन एग्जॉस्ट वॉल्व, देन आई विल एक्सप्लेन. ठीक है. लेट मी कवर दिस एग्जॉस्ट वॉल्व फर्स्ट, देन आई विल कवर एमी इंजन. ठीक है. इज इट क्लियर क्या था वो? यस सर. ठीक है. रोटेशन. ओके, नाउ विल कम टू योर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज योर क्लियरेंसेस. Okay. So first I will talk about your spindle. एग्जॉस्ट वॉल्व का जो स्पिंडल है उसमें क्या क्या चेक करना है. सो दिस इज योर स्पिंडल.
इसका जो सीलिंग फेस रहता है दैट इज दिस वन ना, यहाँ पे सील करता है आपका सीट के साथ। तभी आपने देखा होगा लास्ट डायग्राम में भी आई ड्रॉ द सीट लाइक दिस, ऐसे बनाया था, ठीक है। सो दिस इज द सीलिंग फेस वेयर इट विल seal with your seat. Okay. Now, what you will do is you have some templates. Okay. That template you will mount here. I'm drawing it because ताकि आप written के through बना सको इस चीज को. That template will be like this. I'll show you in the video also that template. ठीक में बाद में आते हैं. Okay, so you have to lift up your spindle. Okay, and then you will use the template like this. Is it clear? ऐसे लगाओगे template को, ठीक है. And then with a filler gauge you will measure this distance. यहाँ पे इसको measure करोगे. Is it clear? यस सर। This is known as G1. ठीक है. G1 is normal maximum okay, sorry, G1 is your maximum grinding limit. ठीक है. G1 is maximum ground, उसका जो लिमिट रहता है, ठीक है, नॉर्मल लिमिट. इट विल बी लिमिट विल बी डिफरेंट फॉर इंजन टू इंजन, ठीक है ना, ठीक है. इट विल बी मैक्सिमम 2 mm. मतलब यहाँ पे व्हेन आई विल पुट अ फिलर गेज इट शुड नॉट गो मोर देन 2 mm. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बोलो. यहाँ पे यस व्हेन सर। आई विल पुट माय फिलर गेज इट शुड नॉट बी मोर देन 2 mm. 2 In one video I was doing it. This is something else. ये दिख रहा है, फिलर गेज डाल रहा हूं मैं सीटिंग सरफेस में, राइट. बोलो. मैक्सिमम इज 2 mm. 2 mm से नीचे जा रहा है फिलर गेज इट इज ओके, बट नॉट मोर देन 2 mm. इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है. So this is known as G1 value, which is maximum grinding allowance for spindle. So this will tell us how much you can grind, na? Yes. From अगर 2 mm से ज्यादा आप जब ये ग्राइंडिंग करते हो ना, इसकी इन फेसेस की ग्राइंडिंग करते हो, तो अगर वो उसके बाद आपने चेक किया 2 mm से ज्यादा आपका फिलर गेज जा रहा है, दैट मीन्स नाउ दिस हैज टू बी स्क्रैप्ड ऑफ. क्लियर? ओके। ठीक है. दैट इज G1. सेकेंड इज व्हाट यू चेक हियर, we check burn off. ठीक है. स्पिंडल बर्न ऑफ. स्पिंडल बर्न ऑफ के लिए यू विल बी हैविंग वन स्पेशल filler gauge here itself. ठीक है. And some markings will be given like a scale. ठीक है. ऐसे markings लेंगे. You can see in this video also it has one, right, attached. Agreed? ठीक है. So what you will do is you will start measuring this distance now. I will highlight here. You will start measuring this distance. ठीक है. At different points. Center में ले लो, side में ले लो. 2-3 points you take. ठीक है. कितना distance है from your tool. इसको लगाओगे तो यू कैन से ना स्केल में कितना तक आ रहा है आपका, राइट, डिस्टेंस. एग्रीड? सर।
see like this, he will take the burn off like this. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में आप चेक करो, आप देख सकते हो उसका स्केल बना हुआ है ना, यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा। यस सर। ठीक है, यू कैन सी हाउ मच mm इट इज, ये डिस्टेंस कितना है। सो दिस इज नोन एज स्पिंडल बर्न ऑफ, बिकॉज ये हॉट क्रोजिंग की वजह से इट कैन बर्न ना आपका नीचे, यू हैव द इंटरनल लेयर एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो द मैक्सिमम बर्न ऑफ इज, ये एक इंजन का जिसका मेरे को याद है मैं उसका बता रहा हूँ, ठीक है। इंजन टू इंजन इट कैन डिफर 8 mm, 8 mm से ज्यादा क्लियरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेक विथ फिलर गेज प्रोवाइडेड विथ 2। यू कैन से विद स्केल प्रोवाइडेड विद द टूल, ठीक है। नहीं है तो भी आप किसी और स्केल से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देख, ये ना G1 वैल्यू दिख रहा है, ये पॉइंट, यस। ठीक है। एंड दिस इज योर बर्न ऑफ दैट इज चेकिंग हियर, सेकंड थिंग। इज इट क्लियर? वैल्यूज आपको एक्चुअल वैल्यूज इस इंजन की देखनी है तो आई विल शो यू द वैल्यूज ऑफ दिस इंजन, दे विल बी गिवन ओवर हियर, राइट। देखो ये एंगल्स भी लिख लो, ठीक। नॉर्मली पूछते नहीं है एंगल्स वगैरह, ठीक है, बिकॉज नाउ डेज वी आर नॉट अलाउड टू डू द ग्राइंडिंग ऑन शिप, बिकॉज ऑफ शिप में हमेशा यू हैव वाइब्रेशंस, यू कैन सी हाउ फाइन इट इज, 29.9 डिग्री टू 30 डिग्री, इससे ऊपर आप सेट नहीं करना है। लेकिन शिप में जनरेटर्स चल रहे हैं, वाइब्रेशंस रहता है, सो नॉर्मली इट इज नॉट प्रेफरेबल टू डू ऑन बोर्ड, ठीक है, ग्राइंडिंग। इज इट क्लियर? तो यस हम सर। शोर में भेजते हैं इस चीजों को, क्लियर है, ग्राइंडिंग के लिए। जैसे हम ऑक्सिजन इंजन में वॉल लैपिंग करते हैं ना, जी सर। ठीक है, सिमिलरली हेयर ऑल्सो सीट में ग्राइंडिंग की जाती है एंड वॉल स्पिंडल में ग्राइंडिंग की जाती है, बट ड्यू टू लॉट ऑफ वाइब्रेशंस ऑन बोर्ड द शिप्स वी नॉर्मली नॉट डू इट ऑन बोर्ड, इसको हम बाहर भेजते हैं, दे डू इट। इज इट क्लियर? एंड द एंगल्स आर दिस फॉर द ग्राइंडिंग। ओके, नाउ बर्न ऑफ, कैन यू हेल्प मी, वेयर इज बर्न ऑफ टू डू, ये रहा स्पिंडल मैक्स बर्न ऑफ, ठीक है। फॉर दिस इंजन इट इज 12 ohm, so it can change, ठीक है। आई एम गिविंग यू वन जर्नल वैल्यू ऑफ वन ऑफ द शिप। इज इट क्लियर? सर उसमें ग्राइंडिंग का भी है सर नीचे, मैक्सिमम ग्राइंडिंग स्पिंडल का, बर्न ऑफ के हाँ, नीचे सर। हाँ, मैक्सिमम कितना ग्राइंड कर सकते हो आप इसको, ठीक है। यस सर, 2 mm ही है सर। हाँ, Sir, ये मैंने can we इसको grind in zip? वही नो। बोला ना मैंने, नॉर्मली अब नहीं करते हैं, पुराने टाइम पे यस वी स्टिल हैव द मशीन्स, आपने देखा होगा ग्राइंडिंग मशीन रखी रहती है आपके, Yes, sir. है ना। बट नॉर्मली वी डू नॉट डू ऑन बोर्ड नाउ डेज, ठीक है। We send it ashore because of vibration. You can see how fine the angles are to maintain, है ना। 0.1 डिग्री का डिफरेंस है, दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट इन व्हेन वाइब्रेशन शिप इज वाइब्रेटिंग एंड ऑल, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? स्पिंडल बर्न ऑफ, सर ये टेम्पलेट के नीचे क्या लटक रहा है सर? ये आपका गेज है ना, वो स्केल हम्म। जिससे आप नाप रहे हो, ये डिस्टेंस नापोगे, राइट। ये देखो यहाँ पे ये नाप रहा है ना अभी, वो क्लियर है। स्पेशल फिलर गेज है। तो अलग हाँ, स्केल से नाप रहे स्पेशल हैं ना सर? स्पेशल फिलर गेज है ना, अच्छा, यू ओके कैन ओके। कॉल इट फिलर गेज आल्सो। इज इट क्लियर? ओके ओके सर। Specify this G1 clearance in oral sir. हाँ, G1 clearance जो है ना सर, how do हाँ we tell? क्या क्या बोल रहे हो, जीवन क्लियरेंस जो है? हाँ सर, how do we tell the surveyor sir in orals?
वो आपको पूछेगा ही ये G1 G2 G3 वैल्यूज बताओ क्या होती हैं। सो यू हैव टू टेल, यहाँ पे ओके सर। लिखा ना मैंने G1 क्या हाँ सर। है ना, हम्म, लिमिट भी लिख दी, किससे चेक करना है वो भी लिख दिया, राइट। यस सर। नेक्स्ट इज डायामीटर ऑफ, हाँ बोलो। I don't know. स्पिंडल, Mind ये ira. जो ये जो स्पिंडल है ना, दिस स्पिंडल, Mind ira. 10 నిమిషాల క్లాస్ అయిపోద్ది. so in this they will be mentioning at how much distance you have to take the diameters of this spindle. They will giving you specific distances where you have to take the diameter of your spindle with your vernier caliper. ठीक है, I'll show you that also. You can see here, right? यहाँ पे डिस्टेंस दिया रहेगा, ये फर्स्ट पेज पे, हाउ मच दिस डिस्टेंस इज, यहाँ पे एक डायमीटर लेना है। देन सेकंड डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे एक डायमीटर लेना है। सो दिस डायमीटर हैज टू बी टेकन, और उसने बोला कि डायमीटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 17, राइट। आई एम अगेन टेलिंग यू दीज विल बी इंजन स्पेसिफिक, हाँ ठीक है। देखो स्पिंडल का मिनिमम डाया, बिकॉज बढ़ेगा तो है नहीं, वो कम ही होगा डायमीटर धीरे धीरे, है ना। तो मिनिमम डाया शुड नॉट बी 107, ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। G1 G2 G3 वैल्यू इज याद रख लेना, ठीक है। इज इट क्लियर? You should know that you have to check the diameter of the spindle at specific distances, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कौन सा वैल्यू है आपका, 16, हाँ, D0816, राइट। इसने बताया टॉप से कितने डिस्टेंस पे डायमीटर लेना है, 16। सो 16 इज 610 mm के डिस्टेंस पे। इज इट क्लियर, बोलो। सर ये G2 G3 क्या है सर, मतलब G1 तो बता दिया आप। अरे आने तो दो मेरे को, बताएंगे बताऊंगा बताएंगे। बताऊंगा ओके बताऊंगा, don't worry, ठीक है। सो इज दिस क्लियर? Diameter, first three, the checks that we have to do on your spindle, बोलो। स्पिंडल के चेक समझ आ गए? यस सर। वो डिस्टेंस तो मेंशन रहेगा ना सर, उतने डिस्टेंस पे लेना है डायमीटर। हाँ वो मेंशन है ना मैनुअल में, है ना। यहाँ पे जी मेंशन है जी। कितने कितने डिस्टेंस पे लेना है ना। वो वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, आपको वैल्यूज G1 G2 G3 की वैल्यूज याद रखो, क्योंकि वो पूछते हैं ये लोग, ठीक है। ओके सर। देन सीट, नाउ विल टॉक अबाउट सीट, एग्जॉस्ट वॉल का सीट। एग्जॉस्ट वॉल के सीट में वी आर गोइंग टू टेक, नाउ सपोज इफ आई ड्रॉ हाफ सीट, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। ये हाफ ही बनाया मैंने, सिमिलरली यहाँ पे भी है, ठीक है। So what I will do is I will again use a template for seat. Okay, I will use a template like this. This is template for seat. Okay. So here also you have to check it by filler gauge. Obviously इससे पहले आपको साफ कर लेना है ना, सीट वगैरह साफ करके उसके बाद लेना क्लियरेंसेस। You have to take here at this point and you have to take here at this point. This is known as G2, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राइंडिंग लिमिट ऑफ सीट।
इज इट क्लियर? और यहाँ पे इन दिस पार्ट व्हेन यू विल पुट अ फिलर गेज, ठीक है, मैक्सिमम अलाउबल इज 1 mm. देखो वैल्यूज बहुत सारी में आएंगी, आपको सिर्फ G1 G2 G3 याद रखना है। इज इट क्लियर? अगर ओके वन इफ बिलो 1 mm जा रहा है, सेंड सीट फॉर रिकंडीशनिंग। ठीक है, आई विल शो यू हियर सीट पे। यहाँ पे देखो टेम्पलेट लगा के ये फिलर गेज डाल रहे हैं यहाँ पे, राइट इनसाइड। बोलो। यस ठीक है, सो दिस 1 mm से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसको बोलते हैं ग्राइंडिंग लिमिट ऑफ सीट। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर ये पार्ट मैंने ये इसको ग्राइंड करते हैं, ये सीलिंग सरफेस है मेरा, है ना, ये वाला सीलिंग सरफेस है। अगर मैंने ज्यादा ग्राइंड कर दिया, ये टूल नीचे आ जाएगा ना थोड़ा, डू यू एग्री? फिर 1 mm का फिलर गेज जाना बंद हो जाएगा। एग्रीड? यस अगर सर मैंने ये सीट ज्यादा ग्राइंड कर दी तो ये टूल नीचे सिट करेगा ना नॉर्मल, डू यू एग्री? द टेम्पलेट विल सिट स्लाइटली डाउन and then I will not be able to insert a 1 mm filler gauge. That means मैंने grinding limit cross कर दी है। Is it clear? और एक बार रिपोर्ट करो। यस सर। When I will do the grinding of my seat, ठीक है, शोर पे, और अगर excessively grind कर दी, ठीक है, and then when I will put the tool, this tool will sit slightly lower from this position, अभी इस पोजीशन से हाँ थोड़ा और सर। नीचे आएगा। That means ये नीचे हो जाएगा पार्ट। That means now I will not be able to insert a 1 mm filler gauge here. Do you agree? Understood? बोलो। Okay. And this particular part is known as G3। यहाँ पे आप फिलर गेज डालोगे, ठीक है, टेकन बाय फिलर गेज। इसको बोलते क्या है? G3 इज योर एग्जॉस्ट वॉल सीट ग्राइंडिंग। अरे क्लियरेंस क्यों देते हैं सर? एक मिनट, ग्राइंडिंग होल्ड ऑन, पहले मेरे को दिखाने दो। हियर यू कैन सी, यहाँ पे उसने एंगल दिया है आपको, कितना होना चाहिए, कितना फिलर गेज जाना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखा रहा है वो G3, यही चीज ऊपर दिखा रहा है आपको, है ना। जो आपका सीटिंग सरफेस है, वहां पे जो फिलर गेज होना चाहिए वो D0812 वैल्यू देख लेंगे अभी हम। और यहाँ पे कितना से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कितने से कम नहीं जाना चाहिए? 1। 1 mm से कम नहीं जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 1 से ऊपर जा रहा है नो प्रॉब्लम, बट 1 से कम नहीं जाना चाहिए। 1 से कम तभी जाएगा जब यहाँ पे ग्राइंडिंग ज्यादा हो जाएगी और ये टूल नीचे आ जाएगा थोड़ा सा अपनी पोजीशन से, राइट। यस सर। और यहाँ की वैल्यू इज योर D0812। मेरे को जितना याद है 2.3 है, इस वाले इंजन का मेरे को याद नहीं है। 1 2 ना, गैप ऑफ बॉटम पीस सीट 1 mm। 1 2 है, 1 2 था, थोड़ा यस डी सर 1 जीरो 2 एट था। D0812, ठीक है, D0811 भी है, 1 2 एंड 1 1। ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है? 2.3 ये रहा है, ये कैप ऑफ बॉटम पीस सीट, बॉटम पीस सीट मैक्सिमम ग्राइंडिंग, थोड़ा ना 1 1। 1 1 की वैल्यू 2.3 दे रखी थी ना, यस सर। उल्टा क्यों लिख दिया यार?
Maximum wear on the grinding C data T011 and 0.2. Grinding angle है. If the template rests on the lower surface, that is G2. ठीक है, तो वही वैल्यूज लिखो जो मेरे को किसी और शिप की याद है एक्चुअली ना. ठीक है, इस शिप की लिख लो D012 1 mm और यहाँ पे 2.3 mm. ठीक है, उल्टा कर लो. इसको नॉर्मली 1 mm भी रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि देखो एक शिप का याद है उसमें 1 mm था. ठीक है, और इसका 2.3 mm था. क्लियर है, मैक्सिमम. या फिर अगर यही वाली लिखनी है तो ये वाली लिख लो, आपकी मर्जी है. ठीक है, इज इट क्लियर? बोलो. इसको 2.3 mm कर दो और इसको 1 mm कर लो. ठीक है, G3 को. इज इट क्लियर? बोलो. सर लेकिन जो आप जो लिखा है वो उल्टा है ना सर, मतलब आपके जो पुराने हाँ, शिप उसको का. मैं चेंज कर देता हूँ ना. ठीक है, ओके मेरे को किसी और यस शिप का याद है यार, है ना, ये जो इस वाले मैनुअल का याद नहीं, मेरे को किसी और शिप का याद है. ठीक है, यस तो सर यस. वहां के हिसाब से मैं बता रहा था आपको. ठीक है ना, ओके यस सर. तो आप ये लिख लो, ये सेम वैल्यू लिख लो. ठीक है, 2.3 एंड 1 mm. इज इट क्लियर? यहाँ पे 2.3 mm से नीचे नहीं जाना चाहिए. ठीक है, अगर वो नीचे जा रहा है दैट मीन्स, और ये ग्राइंडिंग लिमिट है कि 1 mm तक आप ग्राइंड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं. इज इट क्लियर? बोलो गाइस, इज इट क्लियर? यस सर. सर 2.3 और इसको कर लो 1 mm. ठीक है, अभी ठीक है. G2 सर 1 mm लिखे हैं ना? G2 1 mm, ये 2.3 mm मैनुअल के हिसाब से देख रहे हैं ना अभी हम. इस वाले मैनुअल के ओके हिसाब से, ओके. इस वाले मैनुअल के हिसाब से लिख लो 2.3 mm एंड 1 mm. या मेरे को ही कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा. ठीक है, 1 mm. इज इट क्लियर नाउ? बोलो. सीट का समझ आ गया, क्या चेक करना है सीट में? बोलो बोलो गाइस, वी हैव, आगे भी बढ़ना ग्राइंडिंग है. लिमिट सर. यस सर. ठीक है, ग्राइंडिंग लिमिट समझ आ गया और G3 का आपको समझ आ गया, इट इज एग्जॉस्ट वॉल सीट ग्राइंडिंग. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज योर एयर सिलेंडर. एयर सिलेंडर में क्या बोला था मैंने, क्या लेते हैं? इसकी वैल्यूज याद नहीं रखनी है आपको. ठीक है, आपको सिर्फ पता रखना है G1 G2 G3 की वैल्यूज पूछ लेते हैं कभी कभार वो, बस. एयर सिलेंडर का हम डायमीटर चेक करते हैं, राइट? टेकन बाय माइक्रोमीटर. ठीक है, अगर वो मैक्सिमम अलाउबल से ऊपर चला गया देन यू हैव टू रिप्लेस द एयर सिलेंडर कंप्लीट. याद है एयर सिलेंडर के बारे में बोला था मैंने आपको कि डायमीटर इंक्रीज हो जाता है थोड़ा थोड़ा विद टाइम. yesterday Yes, यस only sir. we सर. discussed, है ना. So you have to take diameter by micrometer, माइक्रोमीटर. dia by micrometer. ठीक है, if it crosses the maximum allowable limit then you have to change it. Okay, then you have your uh, hydraulic piston का piston rings. इसका हम we check the width. कैसे चेक करते हैं? विद वर्नियर. ठीक है, ये जो आपकी
हाइड्रोलिक सिलेंडर है टॉप में, उसमें पिस्टन रिंग्स आती हैं, 2 दिखाई थी। यस सर। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर खोल रहा है, hold on, ये रहा, है ना, ये पिस्टन रिंग्स देखो, अब 2 हैं, ठीक है। सो विद वर्नियर कैलिपर यू आर गोइंग टू चेक द विड्थ ऑफ इट। इज इट क्लियर? बोलो। ठीक है, उसकी भी लिमिट आपको दे रखी होगी। वैल्यूज नहीं याद रखनी है लोग, भाई लोग, अगर याद रख सकते हो इतनी सारी वैल्यूज तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लेकिन याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। देन यू हैव बुश। बुश में क्या चेक कर रहे थे हम? इनर डाया। इनर डाया, है ना। कितनी प्लेसेस पे चेक कर रहे थे? टॉप एंड बॉटम। टॉप पे अलग, बॉटम पे अलग, है ना। 2 जगह टेस्ट कर रहे हैं डायामीटर। कैसे लेंगे? माइक्रोमीटर से, ठीक है। बाय ये माइक्रोमीटर बुश विद कहाँ होता है सर? डायल गेज। एक मिनट, बुश दिखाया था ना, बुश निकाला भी था हमने कल। ये था ना बुश, जहां से एग्जॉस्ट वॉल का स्पिंडल पास हो रहा है, राइट। ओके एग्री? ओके। समझ गया? यस। ओके। देन यू हैव बुश हो गया, डैम्पर पिस्टन, ठीक है। आता हूँ डैम्पर पिस्टन पे भी आता हूँ। देन यू हैव लास्ट वन, दैट इज आफ्टर बॉक्सिंग बैक, check clearance uh, between your seat and valve, ठीक है। 1 mm, this is minimum it should go 1 mm, filler case should go up to 15 mm। एक मिनट देख लेता हूँ इसकी वैल्यू में। ये दोनों समझाना पड़ेगा मेरे को आपको। ये देखो यहाँ पे ले रहा है ये फिलर गेज डाल के, ठीक है। Here also I can show you after boxing up the engine, boxing up your this thing, right, your exhaust valve। जब आप उसको completely बंद कर देते हो, देन आप यहाँ पे बिटवीन द एग्जॉस्ट वॉल एंड सीट में एक फिलर गेज डालते हो, जो कि होगा 1 mm का। 1 mm शुड एबल टू गो, ठीक है। उसका लॉजिक आपको मैं समझाता हूँ बाद में, ठीक है। पहले हम डैम्पर पिस्टन पे आते हैं, ठीक है। सो डैम्पर पिस्टन में क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, इतना डेप्थ में, ज्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ मैं, बट दिखा देता हूँ क्या होता है। देखो, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट यू डू इज, आप ये टॉप जो आपका हुक है ना, पाइप हुक, इसको निकालोगे, ये 4 बोल्ट निकालोगे, यहाँ पे 1 2 पीछे 2 होंगे, उसको निकालोगे। ये ऑरिफाइस प्लग को निकालोगे, ठीक है। और ऊपर से एक डेप्थ गेज यूज करोगे, you will use a depth gauge and you will measure the distance from top to your damper piston। ये, is it clear? I have to measure the distance from here to here on top of my damper piston used by what do you say, depth gauge, डेप्थ गेज। ठीक है।
ये डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया दैट मीन्स मेरा स्प्रिंग इज नॉट गुड, है ना। अंदर इसके स्प्रिंग है ना डैम्पर पिस्टन के, ये देखो देयर इज अ स्प्रिंग हियर, राइट। यस। ठीक है, सो अगर ये स्प्रिंग का टेंशन कम हो गया तो डैम्पर पिस्टन विल कम लिटिल बिट डाउन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, राइट। So that distance will increase. Do you agree? ठीक है, so that distance has to be taken. ठीक है, ये नॉर्मली कोई इतना इसके लिए नहीं पूछता है कभी भी, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि ये भी चीज होती है एक। Sir, if distance increase, it means that spring loses its property. हाँ, आपको अभी डैम्पर पिस्टन का या फिर पूरा वो बॉडी चेंज करना पड़ेगा। Okay, sir. ठीक है, टेकन बाय डेप्थ गेज। ठीक है, नाउ थोड़ा सा हम इसको बॉक्स अप कर लेते हैं भैया, देन आई विल टेल यू दिस 1 mm वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है। सो yesterday we have seen it till here I guess, right? यहाँ तक देखा था। यस सर। चलो, yeah, we have tightened this up and now we will go for your hydraulic cylinder. We will remove the hydraulic piston from it. हाँ, एक चीज मैं और भूल गया, हाइड्रोलिक सिलेंडर का इनर डायमीटर भी also has to be taken. Hydraulic cylinder inner dia, ठीक है, taken by माइक्रोमीटर। वीडियो में दिखेगा आपको। हाँ, पिस्टन रिंग तो चेक कर लिया था, सिलेंडर भी चेक करना है। ओके, सो दिस इज योर, ही इज, आई थिंक विल चेक योर डैम्पर पिस्टन का, इफ आई एम नॉट, और ही विल चेक ओनली द ऑरिफाइस में भी। ये टॉप से निकाल के ऑरिफाइस निकालो एंड क्लीन द ऑरिफाइस। ठीक है, कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए ऑरिफाइस पे। विद एयर गन यू कैन क्लीन इट, द ऑरिफाइस प्लग। दिस इज द वेंट प्लग ना। Okay, I'll just go forward ना। So this is your hydraulic cylinder। ठीक है, now I am going to remove my hydraulic piston। So ये पिस्टन का एक ब्लॉकिंग प्लेट रहता है ताकि पिस्टन नीचे ना गिरे। ठीक है, एक प्लेट रहता है, सिक्योरिंग प्लेट रहता है। So this securing plate I will remove and then only I can remove the piston out। You can see थोड़ा सा ये कंप्लीट डायमीटर के लिए इसने काट के रखा हुआ था थोड़ा सा पार्ट, सो दैट माय पिस्टन डज नॉट फॉल डाउन। ठीक है, क्लियर यस सर। है ना। Yes, sir. So remove this plate and then you can with hand you can just remove your hydraulic piston out। Done. So the piston has come out। Okay, now you can remove the piston rings, check the width of the piston rings, check if it is okay। Normally we replace it। ठीक है, this is the width checked by your feeler gauge। Replacing the o-rings, that is understood, all o-rings has to be replaced। And he's checking what now? Internal diameter of, it is internal diameter of what? Hydraulic Hydraulic cylinder. cylinder. Yeah, okay, good। So now you can go back, you can mount everything back। Okay, mount your piston rings। Marking should always be on top, हाँ, remember piston rings कभी भी डालोगे marking should be on top। Then you can put back your hydraulic cylinder, put the locking plate back, tighten it up, you're good to go। This is your orifice plug, he's tightening again। They have not shown this damper piston के with depth gauge वाला point नहीं दिखाया है इसमें। ठीक है, and now I'm going to put my
hydraulic cylinder back on this, and I can tighten up my nuts on top here. Okay, with the correct tightening torque, and that is it for your this thing, boxing up. Is boxing up clear? बोलो. यस सर. क्लियर है? ठीक है. अभी वो 1 mm वाला मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, है ना, जो लास्ट में आपको मैंने लिखवाया है. This particular shape I worked on. We have seen all these things. ये भी चेक कर लिया हमने. This is also we have seen. ठीक है. This is the burn off. This is the bush का जो टेफ्लॉन सील एंड ओरिंग चेंज करना. I told you not required every time to remove it. Just आपको internal diameter चेक करो. ठीक है. This is your damper piston. Air piston. ये नोटिस इसने वो ऑयल नहीं डाला है ना? हाँ सर. COL, है ना? Okay. They can put it afterwards also through your this spring gear वाले कनेक्शन के थ्रू से, है ना, विदाउट द नॉन वहां से भी डाल सकते हैं. यू कैन सी द ग्रूव ऑल्सो, है ना, दिख रहा है ग्रूव. कैन सी एक लाइन बनी हुई है, दिख रही है. दैट मीन्स इस लाइन पे यस आपका वो टच हो रहा होगा, है ना, सर. योर एग्जॉस्ट वन लिड. दिस वन. एक बार दोबारा देखो. आप यहाँ पे नोटिस करो, ये नीचे वाले पॉइंट पे अभी आ रहा है, राइट, यहाँ पे आ रहा है ना. दिस मीन्स इट इज राइट नाउ इन द ग्रूव. ठीक है, पॉइंटर दूसरे अभी देखो ऊपर उठ रहा है. यस सर. अब ये ऊपर चला गया. व्हाट डज इट मीन? रोटेट किया एग्जॉस्ट वाल्व. समझ आया? बोलो, समझ रोटेट आया, किया. है ना? यस सर. So box up and then you can. ये सब देख लिया हमने. ये ऑयल डाल रहा है वहां से. पहले डाल सकते थे लेकिन चलो बाद में डाला है. ओके, नाउ आई हैव टू चेक द ऑपरेशन ऑफ माई एग्जॉस्ट वाल्व. सो मैं क्या करूंगा, आई विल पुट द एयर फ्रॉम माई स्प्रिंग एयर कनेक्शन लाइन, और उसको मैं रिलीज करूंगा, एंड आई विल सी इफ माई वॉल्व इज ड्रॉपिंग. नीचे से भी दे सकते हो, पॉइंटर से भी देख सकते हो, है ना. See, he is checking the open and closing function of the exhaust valve by putting air and releasing the air. When he is releasing, you can see exhaust valve is opening. Again, he will fill it up. Again, the exhaust valve will close. हाँ, okay, ये बाद में आते हैं. This is a sealing test. ये I'll come to this later on. Now, this is 1 mm filler gauge that I told you that after you box back, you have to insert 1 mm filler gauge between your seat and your valve. Okay, and around 15 mm it should go. ठीक है. अभी इसका क्या मतलब है, दिख रहा है आपको 15 mm में? यस सर. ठीक है, इसका क्या मतलब है वो दिखा दो. अप टू 15 mm. ये सबको समझ आया क्या लिखा है मैंने? दैट मीन्स when my exhaust valve, it's like this. expand. हाँ, आपके एक्सपेंशन के लिए दिया रहता है ये.
ठीक है, और ये एग्जॉस्ट वॉल का सीट है, ठीक है। दिस इज द सीलिंग सरफेस, यहाँ पे सील हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन यू विल इंसर्ट अ फिलर गेज, ये एक डिस्टेंस तक आगे जाएगा नहीं, राइट। फिलर गेज एटलीस्ट 1 mm, और कितना अंदर तक जाना चाहिए, दैट इज अराउंड 15 mm। अगर उससे ज्यादा अंदर गया दैट मीन्स व्हाट, 15 mm। नहीं, अगर 15 से ज्यादा अंदर चला गया फिलर गेज, 15 mm से ज्यादा चला गया लेंथ में फिलर गेज, देन व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे सील नहीं हो रहा है। एग्रीड, समझ रहे हो क्या बोल प्रॉपर रहा हूँ, नहीं हो रहा सर, यस। है ना, सील नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाट इज चेकिंग हियर। एंड दिस 1 mm जो आपको क्लियरेंस दी हुई है, दैट इज फॉर द एक्सपेंशन, जो हीट की वजह से एक्सपेंशन होगा। सो दैट, फॉर दैट पर्पज दिस 1 mm क्लियरेंस इज गिवन। इज इट क्लियर? देखो दोबारा चेक करेगा, लाइक दिस, एंड आई कैन सी हाउ मच इट इज गोइंग। हाँ, यहाँ पे पकड़ के मैं बाद में स्केल से नाप लूंगा, दैट इट इज 15 mm, दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग ऑल द वे थ्रू इनसाइड, है ना। और ये पूरा कंप्लीट सरफेस पे करना है। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट यस क्लियर? सर। सो दिस 15 इज, mm तक सर अंदर जाना चाहिए ना, हाँ, 15 15 mm mm तक तक। अंदर जाना चाहिए, कि वो देखो आपको मैनुअल में देखना पड़ेगा अपने वाले में, ठीक है। मैं ये जो सारी वैल्यूज है ना, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंजन, ओके। ओके ओके। बट अगर याद रखने के लिए आप अपने बोलना, हाँ सर मेरे शिप में इतना था कि ये यस सर। 15 mm तक अंदर तक चला जाता है, 1 mm का फिलर गेज, ओके। 1 mm एंड 1 mm शुड गो, ठीक है। बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि जब एक्सपेंशन होगा, सो यहाँ पे सीलिंग में बी नॉट बी प्रॉपर देन, ठीक है। इज द क्लियरेंसेस क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके इसमें भी सर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है G1 G2 G3, ये डायरेक्टली पूछते हैं वो, व्हाट इज G1 G2 G3, ठीक है। वैल्यूज, सम सर्वेज आस्क वैल्यूज अबाउट G1 G2 G3, बाकी किसी की वैल्यूज नहीं पूछते हैं। फिर बाद में वो पूछ सकते हैं आपसे कि और क्या क्या लेते हो, तो आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं बोलने को। इज इट क्लियर? एयर सिलेंडर, योर हाइड्रोलिक पिस्टन की रिंग्स, ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर का इनर डाया, बुश का डाया, तो दीज ऑल यू कैन से। अंडरस्टूड? बोलो, यस इज सर। इट अंडरस्टूड? Yes, good evening, guys. I'm audible. गुड इवनिंग। Okay. So the last part is remaining here regarding your checks after assembly. So one of the check is this one, right? Is this clear? This check? Bolo? Is this understood to you? 1 mm ka filter gauge that we are inserting. This one, right? After the assembly, we are putting 1 mm filler gauge so that to make sure the contact is making, and it should go around 15 mm, right? ये कल बताया था, बोलो, is this clear? This point? यस। Yeah, okay. So the next check that we do other than these, okay, that will be, those were the clearances. Now your checks. The first one is drop down test, or you can say drop test. Exhaust valve drop test. Second is your air spring sealing test. The third one is telltale hole check. So I think this one is understood to you, right? Telltale hole wala point in your seat. Bolo. The upper o-ring and lower o-rings we have to check, or if gases are coming, we will come to know by telltale hole, right? Is that understood? Do I need to repeat it again?
यस सर, कर देते हैं। हाँ, यस सर, एक बार कर देते सर। वो नीचे वाला ओरिंग लीक होगा जब ऑयल आएगा, और ऊपर वाले में गैस आएगा सर, वही ना? ऑयल कहाँ पे आ गया? Okay. So first we'll see this telltale hole wala concept. Here a telltale hole, right, in this seat. So you can see this is your lower o-ring. This is upper o-ring. Okay. In this region, you will be having your water, right? In this region, you'll be having water for cooling down, right? Is this understood? बोलो. Diagram is understood. ये सीट है आपका, ये भी सीट है. Is it clear? यस ठीक है. Now suppose if my lower o-ring, okay, is not sealing properly or it is leaking, then how water will come out? Water will come out from this o-ring and it will come out from this telltale hole out, right? Is it understood? The water is going to come out from this o-ring because the lower o-ring is leaking. So it will come out from this telltale hole, right? This is the telltale hole. Okay. And if upper o-ring is leaking, it will directly come out from here. आपको दिख जाएगा. But अगर telltale hole से water is coming, that means the lower o-ring is faulty. Is it understood? Yes, sir. Okay. Then if gases are coming out from telltale hole, that means, what does it mean? यहाँ पे combustion spaces है, right? This is your combustion space. Yes, sir. So that means जो metal to metal contact है between your seat and your cylinder head, that is compromised and then gases will be coming out. So you have to do the lapping of your cylinder head, sorry, it's not cylinder head, your exhaust valve seat and your cylinder head body. Okay, जहाँ पे exhaust valve seat बैठता है जाके. Is it clear? Yes, sir. ठीक है. Okay. So this is regarding your लैपिंग क्यों करना चाहिए वहां पे? मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है ना सरफेस का. नहीं सर, एग्जॉस्ट गैस लीक कर रहा है तो वो तो प्रॉपर सीट नहीं, सीलिंग नहीं हो रहा है ना, तो हाँ, तभी तो लैपिंग कर रहे हो ना सीलिंग के लिए. Hold. ये देखो, ये जो सरफेस है दिख रहा है आपको, थोड़ा सा लैप्ड है. कैन यू सी दिस सरफेस? लिटिल बिट यस शाइनी इट सर, इज, यस। राइट? सो दिस सरफेस हैज टू बी लैप्ड. एंड सिमिलरली हमने वॉल्स सीट का भी लैपिंग किया था ना, याद है? बॉटम साइड. यस सर। ठीक है. So these two surfaces has to be lapped because these are going to sit over here. Okay. So if the sealing is compromised, again it will come out from the telltale hole. Is it understood? Telltale hole यहाँ पे रहता है ओरिंग के नीचे. बोलो. Yes, sir. Is it understood? Okay, good. Yes. So सर that और is भी regarding रीजन हो सकता है ना सर, सीट मतलब लीक हो रहा है तो? what? इज एनी अदर रीजन सर फॉर सीट इज लीकिंग? हाँ, अगर कॉन्टैक्ट सरफेस आपका सही नहीं है दोनों का, तो सीट लीक करेगा ना वहां से एग्जॉस्ट गैसेस, राइट? Now, यस next सर। is your spring air sealing test. Now, once you have assembled your, what do you say, exhaust valve, okay, this you can do. This telltale hole only can be tested when main engine is running, isn't it? रनिंग के टाइम पे आप टेस्ट करोगे कि आपका स्मोक आ रहा है या पानी आ रहा है. ठीक है. सो यू विल टेस्ट इट ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन. स्प्रिंग एयर सीलिंग टेस्ट can be done. First of all, engine should be stopped. Now you can do when exhaust valve is out of the engine but assembled.
assembled है but out of engine है, or you can do it is on engine, not removed, exhaust valve is on engine, and then you can do this test, air spring sealing test. समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? When I have to do the air spring sealing test, engine should be stopped. ठीक है. नाउ हम ओवरऑलिंग के बाद क्या करते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व को बॉक्स अप करते हैं, राइट? बट अभी मैंने इंजन पे लगाया नहीं है. आई हैव नॉट असेंबल्ड इट ऑन द इंजन, आई हैव जस्ट असेंबल्ड इट आउटसाइड. नाउ उसको इंजन पे भी लगाना है, राइट? सो बिफोर पुटिंग इट ऑन द इंजन आई कैन डू दिस टेस्ट. इज इट क्लियर? Sir. And this is while my exhaust valve is mounted on my engine. I am not going to overall my exhaust valve, but I just want to check if my air spring sealing test is okay or not. So that is on engine. Is it clear? Bro? Sir, clear, sir. Okay, good. Now, what do you have to do here? Suppose first I will talk about when it is on engine. Okay, that means I have not removed the exhaust valve and overall it is still on the engine. I want to check if my exhaust air sealing is proper or not. So air seal के लिए क्या रहता है, यहाँ पे you have some seals, right, in your air piston. This is air piston, right? देखा था Yes, in the sir. video? Okay, some seals are there. So what I will do is I will stop lube oil pump. Okay, I will stop the lube oil pump. Spring air will still be there. Okay, spring air is on. Okay, spring air I'm still giving. Okay, so if I remove the return line, okay, I will exhaust valve का जो return line रहता है oil का, if I remove that part here, if I see, यहाँ पे देखो. So I have stopped my lube oil connection. That means I have stopped my main engine lube oil pump. Spring air is still coming. Okay. Now if I remove this pipeline, ठीक है, this pipeline is in front of your engine. अगर आपने देखा होगा तो, hold on, this is a ME engine actually. Okay. ये जो रिटर्न लाइन रहता है ना, एक ऐसे सामने की तरफ, ये वाला देखा है ना, सामने एक पाइप रहता है. सॉरी ये नहीं है, ये नीचे वाला है. हाँ, ये वाला, सॉरी. ये एमई इंजन है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एमई इंजन. बट एमसी इंजन में भी ये पाइप रहता है सामने की तरफ. एग्रीड? Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज रिटर्न लाइन है ना. ये रिटर्न लाइन इफ आई अनस्क्रू इट, okay, my lube oil pump is already stopped. If I unscrew this pipeline and my air supply is still coming, and I keep one hand here, or I keep a piece of paper, okay, in this region I keep a piece of paper. क्या आप what do you think, should any air come to this point? यहाँ पे air आना चाहिए, बोलो. No, sir. Air should not come here. Do you Sir. agree? Everyone agrees? Because Yes, air sir. should be sealing properly here na, in this region. Air piston की seals की वजह से air should not leak out. Agreed? Yes, sir. So if air is leaking out, then only you will feel that the air is coming out. That means your air piston sealing has been compromised. You have to open your exhaust valve. You have to change the seals of your air piston. Is it clear? सर वो सीलिंग वाला समझ में नहीं आया, स्लीपर वाला. एयर पिस्टन जो है आपका, ठीक है, होल्ड ऑन, सपोज this is your cylinder, okay, this is your air piston. So there are seals here, है ना. air piston में you have seals. Agreed? I have stopped the lube oil pump. Okay, suppose here the return line is lube oil pump का ये वाला return line है.
ठीक है, the drain line. So spring air is still coming. So normally air should not come out from here. Do you agree? Because it seals की वजह से तो वो contained रहेगा नीचे ही. Agreed? यहाँ पे. Yes. Only if this seal is compromised or if this seal is leaking, only in that case air will starts to come out. ठीक है. So what I can do is, in when my engine is in stop condition, I will stop my lube oil pump. Okay, and I will just open this pipe. ये pipe निकालूंगा, and I'll keep a piece of paper, and I should not feel any air coming out from here. Is it clear? That means my seals are good. Do you agree? Do you agree with this? Yes, sir. ठीक है. So this is when it is mounted on the engine. Same way you can do it when it is out of the engine after you have boxed up your engine. आपको क्या करना है, ये पाइप तो लगा नहीं रहेगा उस टाइम पे. Do you agree? This pipe will not be there. I will supply spring air through a your air hose connection. Okay, and valve will close. After that, I should not feel any air coming out from this region. Is it clear? सर ये स्प्रिंग एयर किधर से जाता है सर? Spring air, it's coming through a non-return valve, ना? ये रहा ना, ए कनेक्शन, ये स्प्रिंग एयर, राइट? ये स्प्रिंग एयर आ रहा है अंदर, एयर पिस्टन के नीचे. एग्रीड? बोलो गाइस, Yes, sir. यू एग्री? ओके, नाउ यू सी, जो आपका ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस? सेफ्टी वॉल्व, राइट? सेफ्टी वॉल्व का भी जो ड्रेन निकलता है ना, यू कैन सी दिस ड्रिल्ड पैसेज इज गोइंग. ओके, इट विल ऑल्सो गो फ्रॉम द रिटर्न लाइन ओनली. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वो भी रिटर्न लाइन से ही आता है ना. इसी पाइप से आपका सेफ्टी वॉल का जो आउटलेट होगा, अगर सेफ्टी वॉल लिफ्ट हुआ कभी, देन इट विल आल्सो बी ड्रिल्ड पैसेज एंड इट विल आल्सो कम फ्रॉम दिस रिटर्न लाइन ओनली. इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस अंडरस्टूड? सो Sir, दैट how मीन्स to दे सेम आर, रिटर्न लाइन से आएगा क्या सर? हाँ, सेम रिटर्न लाइन से आएगा. यस, इट विल कम फ्रॉम द सेम लेकिन रिटर्न लाइन. ठीक है. sir, but मैं how आपको we will know that safety valve would हाँ, dry ओके करके? सर. उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं अभी. ठीक है. Okay. So that means my air can leak because of two reasons. If my air piston seals have been compromised, or if my safety valve is faulty, right? Do you agree? बोलो, do you agree? इन दो रीजन की वजह से the air can come out from the return line. Isn't it? बोलो. Yes, sir. Yes. ठीक है. So what I will do, I will first check the safety valve pressure testing. ठीक है, what is the setting of it? Okay, and then if it is not a problem, it is in good condition, it is still opening at 22 to 25 bar, then I can go for overhauling of my exhaust valve, and I will change the seals of my air piston. Is this clear? So even the liner, if it is worn out, then also air Obviously can जब leak, आप no? obviously when you are opening your exhaust valve, आप बाकी सारे checks तो करोगे ही ना, है ना. Yes, sir. Yesterday what we have seen 8-9 clearances, we will take all those things at that moment, obviously. Okay, but there could be only two possibilities from where your air might leak. Is it understood? Okay, there is one more possibility that air Yes. might be, because यहाँ पे भी आपकी एक o-ring रहती है, it can come out from here also. ठीक है, that is also one possibility. So you will see here क्या लिखा है, देखो, disconnect and remove the drain on pipeline. ठीक है, check if air is coming out. The bore B, what is B here? Here, जो मैं बोल रहा हूँ ये वाली लाइन है ना, यहाँ से भी आपका आ सकता है अगर ओरिंग्स लीक कर रही है तो. ठीक है, आपकी सील रहती है वहां पे. ठीक है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. होल फॉर ड्रेन सी, दैट इज योर सी इज व्हाट, where it is written C, A, B, D, A. Okay, if leakage comes from the safety valve, हाँ safety valve. ठीक है, if leakage comes from safety valve, then the air
or the air piston, ठीक है ना? Either it come from safety valve or from the air piston, ठीक है? Then you can check the safety valve and all those things that I have explained. So is it clear? These two things, these two are more than sufficient. बोलो. ये चेक कब करना सर? ये जब आप देखो नॉर्मली ये फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑलिंग के बाद तो चेक करना ही है ना? After you have overhauled and you have boxed back your this exhaust एग्जॉस्ट valve, वॉल. then I have to do this test. Do you agree? I will just यस सर. open this return line. I will check if any air is coming out. ठीक है? सिर्फ मैनुअली डाल सकता हूँ ना मैं एक पाइप के थ्रू हवा इसके अंदर. बोलो. This is a non-return valve. Air will not come out. It will only go in. यस. Agreed? So I can fill the air and then I can remove the return line is already not there at this moment because it is in workshop or somewhere exhaust valve. So you can just check if any air is coming out or not. And when it is on the engine, also at that time, if you have some problems, you think that your exhaust valve operation is not perfect according to your indicated diagrams. So you can do this test when your exhaust valve is mounted on the engine itself. Just lube oil pump बंद करके रिटर्न लाइन खोल दो इसको एंड चेक कर लो. Isn't it? यस बोलो. सर. ठीक है. So this is your air spring sealing test. Okay. Can we come to the third one? बोलो. Can we come to this drop down test? If this is understood. यस सर. Okay. In this condition also we have to do when main engine is stopped. ठीक है. ये भी मेन इंजन स्टॉप कंडीशन में ही टेस्ट किया जाता है. Normally it will depend on your second engineer. Basically we do every 2 months we do this test. ठीक है. So what it will also show you your sealing capability of your air piston only. ठीक है. एयर पिस्टन की सीलिंग कैपेबिलिटी कितनी है वही आपको यहाँ से पता चलेगा. That is what you have to do is engine should be stopped. Then what you will do is stop your lube oil pump, disconnect spring gear. यहाँ से मैं सिर्फ लीकेज चेक कर रहा था कि बाय सप्लाइंग माय कंटिन्यूसली आई वाज सप्लाइंग माय सीलिंग एयर राइट और स्प्रिंग एयर राइट. Spring air was always on in this case. Agreed? यस सर. ठीक है. In this case, in your drop down test, what I'm doing is I'm disconnecting the spring gear. That means non-return valve अपनी जगह पे रहेगा, but the pipeline I will remove from here. Is it clear? So that means I'm not supplying spring gear anymore. So that means whatever spring gear will be here, that will be present. Agreed? यस सर. Yes, sir. ठीक है. Now, now what I will do is now I will start noting down the time. ठीक है. And also I will open exhaust valve indicator. That means right now indicator will be showing me what? It will be on top position, right? Indicator. बोलो. Top पे रहेगा ना? That means exhaust valve is closed. Agreed? Because spring here है अंदर, है ना? Exhaust valve closed. Closed position पे. It will be showing me exhaust valve is in closed position. Now I will start noting down the time. Okay. So if your exhaust valve starts to open, that means this indicator will start to fall down. Do you agree? अगर एग्जॉस्ट वॉल्व खुल रहा है, ओपन हो रहा है, सो ये नीचे आएगा ना इंडिकेटर का पॉइंटर, राइट? So Yes, sir. if it is dropping down, this indicator is dropping down within 0 to 30 minutes time period, that means I need to do overall of my exhaust valve. Okay. If it is taking 30 minutes to 60 minutes time, that means exhaust valve can be used but frequent checks.
दैट मीन्स एवरी पोर्ट पे एक बार चेक कर लो थोड़ा, है ना। इसमें कुछ नहीं करना, लूबल पंप बंद करना है, स्प्रिंग एयर का कनेक्शन निकाल देना है, ठीक है, बंद कर देना है। एंड वी विल डू इट फॉर ऑल यूनिट्स टुगेदर ना, एक साथ ही आप स्प्रिंग एयर का कनेक्शन सीधा नीचे से बंद कर दो, एयर बंद कर दो, पाइप निकालने की जरूरत भी नहीं है, एयर बंद कर दो सीधा, ठीक है। देन अगर मोर देन 60 मिनट्स है, greater than 60 minutes, in that case, the exhaust wall is very good condition. About the sealing part, huh? Is it clear? सर ये इंडिविजुअल यूनिट का करते हैं या फिर मतलब एक एक सारे टाइम यूनिट करते का हैं एक साथ सब? होता ही है, एक साथ ही आप नीचे से स्प्रिंग एयर का एक वॉल्व रहता है, उसको बंद करोगे ना, तो डिस्कनेक्ट लिख रहा हूँ मैं, क्लोज लिख देता हूँ, ठीक, क्लोज स्प्रिंग एयर। तो आपका सारे यूनिट का एक साथ ही टेस्ट होता है, उससे आपको पता चलेगा विच यूनिट नीड्स, आपको देखना पड़ेगा ना विच यूनिट्स नीड फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ओवरऑलिंग, है ना। सो दैट आई कैन डू इट बाय दिस टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट। इज इट क्लियर? तो एक बार ये टाइमिंग वाला फिर से बताइएगा। टाइमिंग मीन्स अगर इफ योर exhaust valve starts to open between 0 to 30 minutes timing में, then you need to overhaul your exhaust valve. That means आपकी seals are compromised, ठीक है, air piston की, you should overhaul, ठीक है, it is recommended to overhaul. Then if it is dropping, if it is taking more than 30 minutes but less than 60 minutes for my exhaust valve to open, ठीक है, in that case I can reuse my exhaust valve provided that कि मैं थोड़ा precautions लूँ, like in next port also I'll check, okay, if the timing is still okay or not, ठीक है, but you, if you have time you can do that, but more than 60 minutes, that means your exhaust valve is perfectly good, you can wait for the overall, just जब time आएगा तब करो, ठीक है। I'll see, it will be written in manual also, हाँ, ढूंढना पड़ेगा। फिर ये ओपन कैसे होगा सर? अभी एयर जिंदगी भर तो नहीं रहेगी अंदर, वो धीरे धीरे इट विल, व्हाट डू यू से, प्रेशर कम होता जाएगा हल्का हल्का, है ना। सेफ्टी वॉल तो हमने देख लिया, राइट। स्प्रिंग एयर तो सर क्लोज करता है ना वॉल को। या एग्जॉस्ट वॉल इज ओपन हाइड्रोलिकली क्लोज्ड न्यूमेटिकली ना, स्प्रिंग एयर की वजह से। If air cylinder is fitted with new seals, the time, the time the valve is closed may be considered shorter than 15 minutes. The drop-down test should not be carried out until after running hours period of 500 hours on the walls with new sealing rings, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन टेस्ट के बारे में बोल रहा है कि अगर नहीं, यू हैव जस्ट ओवरऑल योर एग्जॉस्ट वॉल एंड आफ्टर दैट यूर टेस्टिंग न्यू न्यू सील्स के साथ, ठीक है, फॉर एन ओवरऑल एग्जॉस्ट वॉल, देन यू कैन गो फॉर 15 मिनट्स का ड्यूरेशन, 15 मिनट्स इफ इट इज नॉट ड्रॉपिंग दैट मीन्स इट इज गुड, ठीक है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट अभी सारे इंजन पे लगे हुए एग्जॉस्ट वॉल, दैट मीन्स उनके रनिंग आवर्स काफी ज्यादा हो चुके हैं, राइट। सो यू हैव टू डू फॉर मच मोर टाइम, लेट मी सी कहाँ लिखा है वो 30 मिनट्स वाला, आई सॉ दैट इन द मैनुअल ओनली। ये पॉइंट समझ आया क्या लिखा है इन्होंने, गाइस बोलो। नहीं आया सर। वो बोल रहा है अभी सपोज आई हैव जस्ट ओवरऑल दिस एग्जॉस्ट वॉल्व, दैट मीन्स मैंने इसकी सील्स तो ऑब्वियसली चेंज की होंगी एयर पिस्टन की, राइट। आई ओके। हैव जस्ट चेंज द एयर पिस्टन सील्स, सो आई कैन कैरी आउट द ड्रॉप टेस्ट फॉर ओनली 15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट्स में इफ इट इज नॉट ड्रॉपिंग देन मीन इट इज वेरी गुड, ठीक है।
I should not go for 60 minutes का test. Is it clear? Because Okay. seals are new. Because seals are new. ठीक है? Yes. नहीं यार अभी मेरे को नहीं दिख रहा है. ठीक है छोड़ो. चलेगा. जो लिखवाया है वो समझ आ गया ये चीज. ठीक है. बोलो. सर फॉर द प्रीवियस मेथड एयर स्प्रिंग सीलिंग टेस्ट में सर रिटर्न लाइन ओपन करने से पहले वी हैव टू डीप्रेशराइज द हाइड्रोलिक लाइन सर बिकॉज इट नो कैन नो आप हैपन दैट आप सिर्फ हाइड्रोलिक पंप बंद करो. सिर्फ पंप बंद करो. ऑब्वियसली जैसे एज सुन एज यू स्टॉप द पंप इट विल ऑलरेडी डीप्रेशराइज्ड. इज नो नीड. पंप स्टॉप किया ना सर आई हमने एम इसमें. स्पीकिंग हाँ सर लेकिन हाइड्रोलिक ऑयल का सर हाइड्रोलिक ऑयल की तो बात कर रहे हैं. यू हैव स्टॉप्ड मेन इंजन लूब ऑयल पंप ना इन दिस केस. यस सर So if you have stopped the main engine lube oil pump, then how the pressure will build up of hydraulic pressure? वो तो इंजन स्टॉप कंडीशन में ले रहे हैं हम. दैट मीन्स एक्चुएटर तो मूव कर नहीं रहा है. एग्रीड. यस सर सो प्रेशर इज नॉट बिल्डिंग अप. इज इट सर अंडरस्टूड? माय डाउट वाज लाइक इट इज एट 150 180 बार ना सो पंप बंद करने से स्टिल सम प्रेशर विल बी देयर इन द लाइन ना सो रिटर्न ओपन नो करने नो नो से नो इट इट विल कैन नॉट बी देयर इन द लाइन. इट विल रिटर्न बैक बिकॉज वेंट वॉल्व है ऊपर जहां से ऑयल निकल के वापस से रिटर्न लाइन चला जाता है. राइट. यहाँ अगर मान लो स्टॉप किया आपने उस टाइम प्रेशर था 180 बार. यू हैव स्टॉप्ड योर इंजन. ऑयल विल रिटर्न बैक ना from the return line as soon as you stop your engine. Agreed? यस सर ठीक यस है. सर एंड देर इज वन मोर पर्पस जो मैं भूल गया वेंट वॉल का. दैट मीन्स वो अगर कोई एयर रहेगा लाइन में इट विल वेंट आउट द एयर ऑल्सो. ठीक है. दैट इज ऑल्सो पर्पज ऑफ योर वेंट वॉल. इज इट क्लियर? बोलो. इज इट क्लियर? यस तो ये सर डिप्रेशराइज हो जाएगा सर. सर इवेंट मतलब हाँ रिटर्न ही ऑब्वियसली इट विल लाइन ऑटोमेटिकली डीप्रेशराइज. हाँ इवेंट बोलो. हो वेंट गया रिटर्न लाइन में आते हैं ना सर किस में आते हैं? रिटर्न लाइन में हाँ रिटर्न लाइन में आता है. देखो ये लाइन है आपका. इट विल कम फ्रॉम हेयर. It will go from here. You can see a drilled passages is there. Okay. And you can see यहाँ से भी a drilled passage and it will eventually return back. ठीक है. ये circular में आएगा and it will eventually return back from the return line. Clear है? यस सर Okay. Can we move to ME engine now? If this is clear. Any doubts for you? Exhaust valve. From my side, I have covered everything almost. बोलो. Any doubts? चले. ME engine पे चले. तो ये जो बूस्ट डायमीटर था सर हम लोग जो चेक कर रहे थे बुश का हम्म. डायमीटर, हम्म. तो उसको सर डायल गेज से चेक करेंगे क्या? नहीं इंटरनल माइक्रोमीटर ही होता है आपका. सॉरी माइक्रोमीटर ही होता है बट वो माइक्रोमीटर थोड़ा स्पेशल है. उसमें डायल गेज लगा रहता है. तो आप नॉर्मली इतना छोटा यू माइक्रोमीटर विल नॉट बी एबल टू यू कुड नॉट पुट योर हैंड इनसाइड. राइट. bush die is not so big that you can put your hand inside to check the diameter. So that micrometer is special micrometer. It will be provided with a dial gauge. ठीक है. So whatever movement you are doing it will be showing you the same reading in dial deflection gauge. Clear? ओके ओके. नहीं वो लिखा था डायल गेज इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था. Dial gauge micrometer with a dial gauge. यस सर. ठीक है. बाय माइक्रोमीटर विथ डायल गेज. ओके. Yes. ठीक है. That is a ठीक है. micrometer but it is with a dial gauge. That's it. ओके. Anything else guys? बोलो. Can we move further for your ME engine? Sir, one doubt, Hmm. sir. Oh, why we बोलो. put this oil before box bagging air chamber, sir? Air piston. So that is controlled oil level, right? हाँ sir. So there are two purposes of it. Okay. So one is I will open this diagram. This one, right? So suppose this is your oil. Controlled oil level. Yes, यहीं sir. पे रहेगा. Agreed? Yes, sir. One is I have to give some kind of lubrication between my bush and my spindle. Agreed? So Yes, sir. some amount of lubrication
property it will provide. Is it clear? The first thing. Yes, sir. Second is when this air piston will come down, it will pressurize this oil. Agreed? Pressure will act on the oil also. So it won't allow any exhaust gas to come from here on your air piston side. Because we do not have any sealing air connection here. In previous design, we were having sealing air connection. Agreed? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. So that is the two parts, things that your oil is doing. Okay. So won't this create a fire hazard? All three components of the fire triangle almost completed, sir, in this chamber. How? आपके Oil है स्पार्क सर. या हीट कहाँ है इतना ज्यादा? सर गर्मी ऑयल का रहता है ना, एग्जॉस्ट वाल. नहीं नहीं एग्जॉस्ट वाल है ना. बट ये पानी भी तो ठंडा भी तो हो रहा है. Your guide is cooled by water, right? So in Yes, this sir. region, the temperature will not be so high that it will ignite your lube oil, है ना? Lube oil का ignition temperature भी काफी ज्यादा रहता है नॉर्मल. ठीक है? Yes, sir. ये बस लेकिन सीलिंग का काम करेगा सर यहाँ पे. सर ये बुश गया है तो शायद एग्जॉस्ट लीक कर सकते हैं ना. बुश? बुश हैज worn आउट सर. हाँ, देन आपका ऑयल लीक कर जाएगा एंड देन योर एग्जॉस्ट गैसेस विल बी कमिंग अप. ठीक है? बट नॉर्मली वो सब होगा नहीं, इतने जल्दी बुश नहीं वेयर आउट होने वाला. ठीक है? एनी अदर डाउट्स? Okay, so we'll move to your ME engine then, exhaust valve.